गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे कि जानते हैं कि पिछले वीडियो में जब मैं पढ़ाने के बाद तो whenever I have checked your answer or I have checked your comments, then I found that many of the students you were complaining about infrastructures. Not complaining, but they were saying that they are having some problems in the infrastructure. You should simply know to this that there is no difficulty in the infrastructure. Infrastructure are those factors which are very much required for the productions, but they are not counted as a part of the production. They are very much necessary. The required factors which is part of method of production, but वो प्रोडक्शंस होते नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आर दोज फैक्टर्स विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शंस। I have given you example of a schools that in schools, school buildings, furniture and transportation are these the part of the infrastructure, but are the part of infrastructure, but they are part of school. We cannot say that they are not part of the school building, as well as transportation, as well as furniture. All these are the part of the school. But really, whatever the purpose of the school is to educate the student, to provide the education to the student. This is the main part of the education. But we are saying that they are these transportation as well as the buildings are useless in the absence of the good teachers or as well as the students if not getting the education. Means मेरे कहने का मतलब student are not present and teacher are not present and the processing of the education is not present in the school, then the school buildings as well as transportation as well as furniture are all useless. Means मेरे कहने का मतलब है I am telling to you, I am explaining it again and again that infrastructure is not part of the production, but it is very much helpful, it is very much supportive in the production, that is known as the infrastructure. तो infrastructure को simply try to understand that infrastructures are not part of the production, but these are very important factor for the productions. In the absence of it, production will be affected, it's sure. तो बेसिक आई हैव टोल्ड यू दैट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन किया था वर्ल्ड बैंक ने। मैंने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक। इंफ्रास्ट्रक्चर was defined by वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए बताया कि व्हाट आर द पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ द सर्विसेज दैट कैन बी, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे इंजीनियर्स हो, और उन सर्विसेज जो पब्लिक यूटिलाइज के सर्विसेज है। वर्ल्ड बैंक इंक्लूड टू द ऑल टाइप ऑफ द सर्विसेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। दो सर्विसेज लाइक पावर, telecommunications, electric supply. Which types of the services I am telling you? World Bank has specified that all those services which are providing the facilities to the public, just like as a power supply, telecommunication, pipe to water supply by the pipe, gas supply, sanitation, sewage, proper management of the waste material, collection of the waste material, disposal of the waste material, roads, construction of the roads, railways, dams, canals, proper irrigation systems and waterways, airways. These all services which are beneficial, which are required for the public, all these services are the part of the infrastructure. This has been also defined by the World Bank. World Bank has also defined to the infrastructure, economic, especially economic infrastructure. World Bank has defined about economic infrastructure, इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया। वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया कि ऑल दो सर्विसेज वर्ल्ड बैंक के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को जब डिफाइन किया गया तो वर्ल्ड बैंक ने बेटा डिफाइन किया कि ऑल दो सर्विसेज
which provide the facilities, all those services which provide the facilities to the public. Which types of the facilities? That can be doctors, means मेडिसिनल, मीन्स आपके जो आपका हेल्थ बिलोंगिंग सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज हैं, आपकी प्रॉपर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, एज वेल एज सप्लाई ऑफ द वाटर बाय पाइपलाइन, सैनिटेशन, सफाई से रिलेटेड, एंड सैनिटेशन, प्रॉपर collection as well as the disposal of the waste material, irrigation system for the village area, for the agriculture development, construction of the roads, dams, as well as the different types of transport services, airport, economic infrastructure का ये सारे पार्ट होते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने इन सारी चीजों को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड किया और ये बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आई हैव एक्सप्लेन टू यू दैट व्हेन इन 1991 के बारे में आपको बातें कर रहा था कि व्हेन 1991 देयर वाज इलेक्शन कंडक्टेड of the general election of the entire country, Lok Sabha, in which Congress came in the powers, and Mr. P.V. Narasimha Rao became the Prime Minister of India, and he has appointed to Mr. Manmohan Singh as a Finance Minister of India. Then he has focused himself on developing the infrastructure by which he was trying to invite the foreign investment. I have told you about the foreign investment that this is two types of the investment. Foreign investment two types का होता है, एक FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड सेकंड होता है बच्चों पोर्टफोलियो टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। FDI जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन दिस मेथड ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो फॉरेनर इंसान होते हैं वो इंडिया में आकर के बच्चों इंडिया में अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, मीन्स अपनी प्रोडक्शन यूनिट की बिल्डिंग बनाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट तैयार करते हैं, प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, एंड देन वो इंडिया इस तरीके से दे आर इन्वेस्टिंग टू द इंडिया। सच टाइप्स ऑफ द इन्वेस्ट इज नोन एज ए डायरेक्ट इन्वेस्ट, एंड व्हेन ए फॉरेनर invest their money by buying the equity, belief as well as the shares of the different companies, and they directly not engage in the production of the production. Such types of the investment is known as a portfolio types of the investment. तो मैंने बताया था कि at that time and from then government has in 2001 and 2 when at the time of Mr. Atal Bihari Vajpayee as a Prime Minister of India, he has started to celebrate the NRI Day, भारतीय प्रवासी दिवस। In Hindi में it is also known as a भारतीय प्रवासी दिवस, which is English known as a short NRI Days. In by NRI Days, we are inviting to all those Indians which are permanently settled in the foreign countries to show them the conditions of the India, that India is now changing and the investment in India is now secure. That's why the main purpose is that those foreigners who has also achieved very good status, very good positions in their business, and to attract them that they should also invest in India. So this is the purpose of the celebrating of the NRI Day, which is also celebrated in 8 January every year. It मतलब first week of the January कि में ये celebrate किया जाता है, and every year it is also celebrated, has been started by the Prime Minister of India, Mr. Atal Bihari Vajpayee के टाइम पे this process has been started. तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है कि भारत सरकार भी इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट द फॉरेन मनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन मनी नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मनी कहना तो मतलब बाय लीगल और लीगल, बट इन्वेस्टमेंट इज ए लीगल प्रोसेस बाय विच द फॉरेनर इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया। तो this the main purpose is, and foreigners always complain it that the infrastructure of India is not good. I have told you about it belonging it that India has tried to establish the SEZ area के बारे में बताया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बच्चों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंस्ट्रक्शन किया भारत सरकार ने। और भारत सरकार का मेन पर्पज है कि इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू एक ऐसा एरिया डेवलप किया जाए जिसमें वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज हो, सो दैट
foreign invest can be attract toward the India. This is the purpose of the development of the SEZ. तो मेरे कहने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं किसी भी कंट्री में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी डेवलपमेंट के लिए, दे आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, banking system can be also, although it is a part of the service sector, but here it will be included in the infrastructure, that because banking is also providing the service, banking, transportation systems, railway system, which is also the part of the transportation system, should be also advanced. This is the purpose of the developing of the infrastructure. So what is infrastructure? Simply हम कहें कि all types of the services which provide the different type of the services to the man are included in part of the infrastructure. तो बच्चों infrastructure clear हुआ. मैंने आप लोगों के comments देखे थे. I have seen your comments दैट कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम समझ में आया. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाओ, बस इतना समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है. ऑल दोज रिक्वायर फैक्टर्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन बट दे आर नॉट प्रोडक्शन या दे आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन बट दे आर वेरी मच necessary for the production are known as infrastructure, like roadways है, railways है, means advancements of the transportation है, proper electric supply है, different type of services है, that can be education, that can be also medical से related the services, so that society can be also make healthy, supply of electricity properly, as well as the supply of water, sanitation, means a collection of the garbage also, as well as the disposal of the garbage. These are all the part of the infrastructure, means the services which are provided for the productions या for the public is known as infrastructure. So infrastructure is clear now. Infrastructure has been also defined by World Bank, और World Bank ने सारी चीजों को अपने में एक पार्ट बना लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीजें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये पार्ट होते हैं. बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर. ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि बेटा सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहा है, सर्विस सेक्टर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. तो सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि कहाँ ज्यादा लोग एम्प्लॉय इस समय किस एरिया पे किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयमेंट गेन कर रहे हैं. तो मेन पर्पज अभी हमारा जो मेन पर्पज है बच्चों वो पढ़ना है सर्विस सेक्टर, व्हाई सर्विस सेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयमेंट गेन कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम लोगों का जो टॉपिक है वेयर द मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड, where are most of the people employed. ठीक है, where are the most of people are employed. तो अगर हम बातें करें where are the most of the pupils employed. ठीक है बच्चों, तो कहाँ कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयमेंट गेन किए हुए हैं, कितने परसेंट लोग किस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं. पहले हम ये देखेंगे कि किस सेक्टर में कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं. तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम कंट्री वाइज जैसे स्पेसिफिक को क्लासिफाइड करें, कैटेगराइज करें अकॉर्डिंग टू कंट्री वाइज, तो हम देखते हैं कि हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है लाइक अमेरिका, जापान, फ्रांस, रसिया, जर्मनी, इटली, वहां पर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर इंगेज इन द सर्विस सेक्टर एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड वेरी फ्यू पॉपुलेशन एज वेल एज इन अमेरिका वी आर सीइंग दैट 1 to 2%, only 1 or 2% population, 1% or 2% population are engaged in the प्राइमरी सेक्टर या एज वेल एज वी कैन से दैट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो बहुत कम पॉपुलेशन बेटे हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में एंगेज है इन डेवलप्ड कंट्रीज में, बट इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में हम देखते हैं डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग. तो हम वैसे मैंने बताया था कि ऑन द बेस ऑफ द इनकम वर्ल्ड बैंक हैज कैटेगराइज्ड टू द वर्ल्ड कंट्रीज इन 3 ग्रुप्स. ऑन द बेस ऑफ इनकम के बेस पर देखा जाए बच्चों, this is the classification by World Bank, classification by the World Bank. ये वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन के जो कंट्रीज का
क्लासिफिकेशन है बच्चों ऑन द बेस ऑफ पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इनकम बच्चों पर कैपिटा इनकम के बेस पर बच्चों वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को क्लासिफाइड किया। पहला उन्होंने किया डेवलप्ड कंट्री, कौन सा बेटा, डेवलप्ड कंट्रीज। दूसरा उन्होंने डिफाइन किया डेवलपिंग कंट्रीज, और तीसरा उन्होंने डिफाइन किया अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये तीन कैटेगराइजेशन बच्चों किया वर्ल्ड बैंक ने ऑन द बेस ऑफ द पर कैपिटा इनकम। द पर्पस ऑफ द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट these three groups. The base of this is per capita income और नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट होती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पीसीआई पर कैपिटा इनकम जो होती है बेटा, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। दिस इज द फार्मूला ऑफ द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम, तो पर कैपिटा इनकम बच्चों नेशनल इनकम पे डिपेंड करती है। तो किसी कंट्री की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बेस पर जो कंट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया वो वर्ल्ड बैंक ने किया। और इसके बाद बच्चों जो हमारा यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बच्चों, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बच्चों स्टार्ट किया गया, इससे मतलब इसे यूएनडीपी जिसे बेटे यूएनओ के एक पार्ट के रूप में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बच्चों स्टार्ट किया गया। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट के थ्रू यूएनडीपी के थ्रू ये स्टार्ट किया गया। और इसमें जो कंट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया, इसमें भी कंट्रीज को बेटा 3 ग्रुप में रखा गया। पहला बच्चों डेवलप्ड कंट्रीज, पहला इसका भी पार्ट है डेवलप्ड कंट्रीज। दूसरा बच्चों डेवलपिंग कंट्रीज, और तीसरा बच्चों जो इन्होंने डिफाइन किया अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो बच्चों ये इसका भी इन्होंने भी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से के आधार, जैसे वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया वर्ल्ड के कंट्रीज को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया, वैसे बच्चों यूएनडीपी ने वर्ल्ड के कंट्री को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया। लेकिन जो बेस था वर्ल्ड बैंक का वो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम से बिलोंग करता था। जो यूएनडीपी ने जो अपना बेस बनाया, उसमें बेटा 3 कैटेगरी 3 पार्ट उन्होंने इंक्लूड किया। पहला पार्ट उन्होंने जो भी अपना बेस बनाया मेजरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट का, वो बच्चों HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया। किसको बनाया बच्चों? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बच्चों इट इज द एवरेज इंडेक्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। बच्चों क्या इन्होंने बनाया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। और इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इनका जो फार्मूला बनाया एसडीआई का जो फार्मूला बनाया वो बताया जो 1/3 SLI स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एनवायरमेंट एनरोलमेंट रेशियो
इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स को बच्चों एजुकेशनल एनरोलमेंट रेशियो इंडेक्स, एजुकेशनल एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स ये होता है। तो बच्चों उन्होंने जो एचडीआई को डिफाइन करने की कोशिश, एचडीआई ने जो कंट्री को कैटेगराइज करने की कोशिश किया, एचडी मतलब यूएनडीपी ने जो कंट्री को कैटेगराइज किया, मैंने बताया कि यूएनडीपी ने कंट्री को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया, डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज और इस कैटेगराइजेशन की यूएनडीपी के कैटेगराइजेशन के पीछे जो बेस था, द मेन बेस ऑफ द कैटेगराइजेशन ऑफ द कंट्रीज इन 3 ग्रुप, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उसके पीछे बेटा जो लॉजिक था वो एचडीआई था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 1/3 SLI EAI एंड LEI EAI, यानी एवरेज ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, ये 3 का एचडीआई इक्वल टू 1/3 यानी रेशियो ऑफ द SLI, फुल फॉर्म ऑफ द SLI स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, EAI LEI लिविंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, EAI एजुकेशनल एनरोल अटेनमेंट इंडेक्स। अब बच्चों मैं आपको बता दूं इन तीनों का फुल फॉर्म मैंने बताया कि ये बेस बनाया गया, दिस इज जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स है दिस ये बेटा इनकम से बिलोंग करता है इनकम से बिलोंग करता है। इनकम को बेटा हम 2 पार्ट से मेजर करते हैं, एक इनकम और एक PPP, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी क्या है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया जो SLI है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, दैट इज डिपेंडेड ऑन द इनकम, इट also include income, LEI that include the medical facilities, life expectancy index मतलब at the time of the birth what will be the expectation of the length of the life of a particular person, that is known as a life expectancy index, and this is life expectancy। और इसका इंडेक्स का फार्मूला होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला होता है बेटे एक्चुअल एज माइनस मिनिमम एज अपॉन मैक्सिमम एज माइनस मिनिमम एज। तो इस तरीके से किसी भी बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम 1 आएगी, और इस तरीके से तीनों इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। और इस तरीके से एचडीआई की वैल्यू 1 + 1 + 1 यानी 3/3 मैक्सिमम 1 हो सकती है, लेकिन किसी भी कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मैक्सिमम 1 नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम होने का मतलब है कि उसका एचडीआई के तौर पर कंप्लीटली डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट बेटे कभी कंप्लीटली नहीं हो सकता, क्योंकि डेवलपमेंट एक कंपैरेटिव वर्ड होता है। डेवलप एज यू नो दैट डेवलपमेंट इज ए कंपैरेटिव वर्ड, जो हम लोग कहते हैं कि ही इज वेरी डेवलप्ड, ही इज वेरी पुअर, तो इट इज ए कंपैरेटिव टर्म्स। फॉर एग्जांपल के तौर पर इफ वी आर लिविंग इन द विलेज एंड इन विलेज if you have earned 20-30 lakh rupees, then it means that in village level we will accepted by the villager just like as a rich man, while in city area it's very difficult to buy a very small piece of the land in 30 lakh rupees in very developed area। तो it is a comparative word कि हम गांव में थे, we were in village, and in village if you have earned 30 lakh rupees then we are at the level of the rich person